Good morning, friends. Myself Kedar Badeka, and today I am taking your 21 lecture of quality engineering. So, in yesterday's lecture, we start your new chapter from your syllabus, which is about the design of experiments, and we try to understand the basic things about the design of experiment, where the design of experiment is useful, how we can use this design of experiment, or we can say that this kind of the analytical tool is very useful for taking some kind of the activity where you need such kind of the statistical technique to select the set of the window, right? Set of the parameters window, we can set of the some kind of the you have to just right now you want to suppose you have the various kind of the uh, parameter range, right? From the various huge parameter range, suppose you have to select such kind of the basic usable process parameter from that window. We can use that kind of the statistical tool which is known as a design of experiment. So basically the design of experiment is the process which is useful for that to selecting such kind of the statistical we can say that such kind of the statistical way to get such kind of the experiment, to perform the experiment with the effective manners. So let's start. In yesterday's lecture we tried to discuss the few of the basic things about the aim of design of experiment, what kind of the basic objective of design of experiment, what kind of the basic kind of the procedure of the design of experiment, where the design of experiment is useful, the basic terminology which is used for the design of experiment, right? The replacements, the blockings, that we are discussed in the previous series of the lecture. Now, in today's lecture, we start the further discussions on the design of experiment. So, basically, the experiment design process, जैसे हमने कल के लेक्चर के अंदर जो है ये डिस्कशन करने की कोशिश की थी कि डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट को एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन और डिज़ाइन एक्सपेरिमेंट्स भी बोला जाता है, राइट? तो बेसिकली एक्चुअली ये डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट जो है वो काम कैसे करता है, तो आज के लेक्चर के अंदर जो है वो पूरा प्रोसेस जो है वो हमें समझने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहले आपके पास सपोज आप कोई एक ऑपरेशनल इंडस्ट्रीज के अंदर जो है वो वर्क कर रहे हैं, राइट? सपोज यू हैव सर्टेन काइंड ऑफ द प्रॉब्लम्स। ये आप समझिए, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे कि डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट जो है वो किस तरीके से काम करता है। तो वो किस तरीके से काम करता है उसको समझने से पहले जो है वो हमें ये इस चीज़ को जो है वो समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि ये किस तरीके के एक तरीके से किस तरीके से ये वर्क कर रहा है अभी, और आप किस तरीके के प्रॉब्लम के लिए इसको वर्क करवा सकते हैं। So basically, the experimental design process is start with, suppose you have certain kind of the problem, or we can say that you have a number of problem. Then you have some certain kind of that problems objectives, right? You have to determine the objectives. आपके पास सपोज एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के अंदर कुछ ऐसा आप अज्यूम कर लीजिए 2 या 5 मिनट के लिए कि आपका जो है वो आप प्रोडक्ट जब बनाते हैं तो डायमेंशनल जो है कुछ वेरिएशंस आते हैं आपके प्रोडक्ट के अंदर, राइट? अब उस प्रोडक्ट के क्या ऑब्जेक्टिव्स है, तो उस ऑब्जेक्टिव्स को जो है वो आपको थोड़ा उसके ऊपर थोड़ा गौर करना पड़ेगा। तो ये प्रोडक्ट जो है उसके ऑब्जेक्टिव्स ये है, ये प्रोडक्ट यहाँ काम लग सकती है, ऐसे इस तरीके से काम कर सकता है, इस तरीके से काम कर सकते। तो यू हैव टू डिटरमाइन दैट ऑब्जेक्टिव्स, एंड यू हैव टू ऑल्सो कीप इन माइंड दैट द बेसिक प्रॉब्लम जो है वो उस ऑब्जेक्टिव्स के साथ कहाँ पे जो है वो क्लैश कर रहा है। So you have to certainly, after the defining the problem, suppose you have a problem, you are justifying that problem, you are defining that problem in the details, and then you have to
determine the objectives from that problems. Now the we can say that it's kind of the activities of the brainstorming, अथवा तो ब्रेन स्ट्रॉमिंग जो एक्टिविटी बोलते हैं ना, इसमें से आपको क्वेश्चंस निकालने हैं। इसको आपको इस प्रॉब्लम के ऊपर, इस ऑब्जेक्टिव की इस ऑब्जेक्टिव को जो आपने फाइंड आउट करी है, उस ऑब्जेक्टिव को नज़र में रखते हुए आपको ब्रेन स्ट्रॉमिंग एक्टिविटीज़ करनी है। यानी आपकी इस प्रॉब्लम को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करके, खुद के सामने क्वेश्चंस करके इस एक्टिविटी को करनी है। किस तरीके से ये प्रॉब्लम जो है इस ऑब्जेक्टिव्स के साथ जो है वो रिलेट कर रहा है। देन नाउ द डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट विल बी स्टार्ट फ्रॉम दी स्टेप नंबर 4, राइट। जहाँ तक आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग हो गया तो आपने कुछ कुछ रीज़न जो है इस प्रॉब्लम और इस ऑब्जेक्टिव्स के साथ जो है वो आपने थोड़े वर्कआउट किए होंगे। जैसे ये चीज़ आपका वर्कआउट हो गया, आपने कुछ फाइंड आउट कर लिया, तो अब यहाँ से आपका डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। अब इस डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स के अंदर जो है वो 5वां स्टेप्स है आपका, यू हैव टू कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट्स एंड द कलेक्ट द डेटाज। अब यहाँ से आपने जैसे प्रॉब्लम डिफाइन हो गया, फिर ऑब्जेक्टिव्स आपके पास हो गए, फिर आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लिया, फिर डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट ने यानी आपने पर्टिकुलर एक मेथड को चुना और उस मेथड के ऊपर जो है आपने उस मेथड को नज़र में रखते हुए आपने एक्सपेरिमेंटल वर्क अपना स्टार्ट कर दिया। और उस एक्सपेरिमेंट में जो भी डेटाज आपको कलेक्ट हो रहे हैं वो सारे डेटा जो है वो आप कलेक्ट कर रहे हैं, राइट। अब उस कलेक्ट किए हुए डेटा को जो है उस डेटा को आपको एनालिसिस करना है। यू हैव टू एनालाइज दैट डेटाज, राइट। तो उस रीज़न में जो है वो क्या फ्लैक्चुएशंस जो है वो प्रॉब्लम के हिसाब से आ रहे हैं। देन इंटरप्रेट द रिजल्ट्स। आपको जो भी इस डेटा से जो भी रिजल्ट मिल रहा है उस रिजल्ट को आपको इंटरप्रेट करना है उस प्रॉब्लम के साथ, उस ऑब्जेक्टिव के साथ। इज दैट योर ऑब्जेक्टिव इज फुलफिल्ड और नॉट। देन यू हैव टू वेरीफाई द प्रिडिक्टेबल रिजल्ट। अब उस चीज़ को जो आपको अभी रिजल्ट मिला, उस रिजल्ट को आपको एक प्रिडिक्टेबल रिजल्ट के साथ जो है वो आपको उसको कंपेयर करना है, उसको वेरीफाई करना है। इज इट मैच विद द प्रिडिक्टेबल रिजल्ट और इट इज़ वेरी क्लोज टू द प्रिडिक्टेबल रिजल्ट और इट इज़ वेरी फार फ्रॉम द प्रिडिक्टेबल रिजल्ट। दैट इज़ द 3 पॉसिबिलिटीज। इज इट ओके? ओके, तो ये चीज़ जो है वो इस तरीके से पूरा प्रोसेस जो है वो काम करता है। तो किन किन ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर जो है वो आपको रिज़ल्ट जो है वो क्लोज रिज़ल्ट मिल रहा है, कुछ एग्जैक्ट रिज़ल्ट मिल रहा है, कुछ जो है वो रिज़ल्ट बहुत ही दूर रिज़ल्ट आपको मिल रहा है इस प्रोसेस से। तो उस चीज़ के ऊपर जो है आपको ज़्यादा फोकस करना रहेगा। और ये किस तरीके से काम करता है, तो इसके काम करने के किस तरीके से किस मेथड के ऊपर ये काम कर रहा है। तो बेसिकली द टाइप्स ऑफ डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स के अंदर इतने टाइप ऑफ डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स रहते हैं। तो फर्स्ट आपके सामने जो है वो पहला मेथड है विच इज़ दी 1 फैक्टोरियल डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, जिसके अंदर 1 फैक्टोरियल काम करता है। देन सेकेंड मेथड विच इज़ द फुल फैक्टोरियल डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। देन थर्ड मेथड विच इज़ अबाउट दी fractional factorial design of experiments, which is the third, which is the fractional factorial design of experiment. Then the fourth method which is about the screening experiments. अब screening experiments की अगर मैं बात करूँ, that is a Plackett-Buman design and Taguchi orthogonal arrays. तो स्क्रीनिंग एक्सपेरिमेंट्स के अंदर ये 2 मेथड विच इज़ द फर्स्ट विच इज़ द प्लैंकेट-बर्मन्स डिज़ाइन एंड सेकेंड विच इज़ द टागुचीज ऑर्थोगोनल एरेज, ये आपने नाम कहीं कहीं सुना होगा, राइट। ये जो बहुत सारा क्रेडिट जो है आजकल ये डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट के लिए जो है वो तागुची को बहुत ज़्यादा क्रेडिट दिया जाता है, राइट। बहुत, यानी ये सच भी है क्योंकि ये मेथड को डेवलप करने में तागुची ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस दिया है। उन्होंने ही ये चीज़ हमें एक तरीके से इन्वेंट करके दी है। एंड देन द रिस्पॉन्स सरफेस एनालिसिस विच इज़ द RSA मेथड्स, विच इज़ द रिस्पॉन्स सरफेस एनालिसिस मेथड। तो ये
बेसिकली 5 तरीके के डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स जो है वो रहते हैं। तो चलो इसको ज़्यादा जो है वो कुछ स्ट्रॉन्ग तरीके से इसको सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहला मेथड आपका ये है विच इज़ दी फर्स्ट स्टेप ऑफ डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट विच इज़ द 1 फैक्टोरियल मेथड। अब 1 फैक्टोरियल मेथड जो ये चीज़ है ये क्या चीज़ है? तो 1 फैक्टोरियल मेथड इज़ लाइक द 1 फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट्स इज लुक एट वन ओनली 1 फैक्टर्स इज। तो ये 1 फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट्स जो है ये सिर्फ जो है वो एक फैक्टर्स को देखता है। इज ओनली 1 फैक्टर इज लुक एट ओनली 1 फैक्टर। ये 1 फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट्स जो है विच इज लुक एट ओनली 1 फैक्टर्स विच इज हैविंग एन इम्पैक्ट ऑन आउटपुट एट द डिफरेंट फैक्टर्स लेवल। तो ये सिर्फ एक फैक्टर को जो है वो स्टडी के लिए लेता है और उसका जो इम्पैक्ट है आउटपुट के ऊपर अलग अलग फैक्टर लेवल के ऊपर उसको जो है वो स्टडी करने की यहाँ पे कोशिश करता है। तो सिर्फ यहाँ पे ये एक तरीके से आपको 1 फैक्टोरियल के अंदर जो है ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो बाहर निकल के आती है ये चीज़ है कि ये सिर्फ एक फैक्टर को नज़र में रखते हुए स्टडी करता है। द फैक्टर कैन बी the factor is there is a two kind of the factor. The first the factor is either it is a qualitative factor, either it is the quantitative factors. In case of the qualitative factors like a different suppliers, different materials, no predictions can be performed outside the tested levels. तो इसके ऊपर जो है वो कुछ आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्शंस नहीं कर सकते हो। द ओनली इफेक्ट ऑफ दैट फैक्टर ऑन द रिस्पॉन्सेस कैन बी डिटरमाइंड। तो उसका जो है एक इफेक्ट आएगा रिस्पॉन्स के ऊपर वो सिर्फ आप जो है वो उसको देख सकते हो, उसको फील कर सकते हो। इन द केस ऑफ द क्वांटिटेटिव फैक्टर जो भी क्वांटिटी है, क्वांटिटेटिव दैट मीन्स अ मेजरेबल फैक्टर्स लाइक द टेम्परेचर्स, वोल्टेज, लोड एक्सेट्रा is can be used for both effect investigations and predictions। ये दोनों चीज़ों के लिए इसकी इफेक्ट जो है उसको आप इन्वेस्टिगेट भी कर सकते हैं, उसको प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं। एंड प्रोवाइडेड दैट सफिशिएंट डेटाज आर अवेलेबल, उसके लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग सफिशिएंट डेटा लेवल जो है वो आपको मिल जाता है। तो ये किस टाइप के जो है वो फैक्टोरियल डेटाज जो है उसके ऊपर आइदर इट इज़ ए क्वांटिटेबल फैक्टर्स देन इट इज़ only response to the output result, and if it is the quantitatives, the qualitative होगा तो सिर्फ उसका response आपको output के ऊपर दिखेगा, उसको ज़्यादा आप strongly predict नहीं कर सकते। और वो अगर क्वांटिटेटिव्स होगा तो फिर उसका जो है वो आपको रिजल्ट जो है उसको आपको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं और प्रिडिक्टेबल भी कर सकते हैं। तो 1 फैक्टोरियल मेथड के अंदर इन सिंगल फैक्टर एक्सपेरिमेंट्स द एनोवा मॉडल्स आर यूज्ड टू कंपेयर दी मीन रिस्पॉन्स वैल्यू। तो इसके अंदर इन सिंगल फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट्स के अंदर की अगर बात करें तो एनोवा मॉडल आर यूज टू कंपेयर दी मीन रिस्पॉन्स वैल्यूज एट डिफरेंट लेवल ऑफ द फैक्टर्स। तो एनोवा मॉडल को यूज़ करते हुए हम इसकी मीन रिस्पॉन्स वैल्यू जो अलग अलग डिफरेंट लेवल फैक्टर्स के ऊपर क्या रिस्पॉन्स कर रहे हैं उसको हम लोग इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। ईच लेवल ऑफ द फैक्टर इज इन्वेस्टिगेटेड टू सी इफ द रिस्पॉन्स इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। हर एक लेवल के ऊपर हम लोग इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि रिस्पॉन्स जो है वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है फ्रॉम द रिस्पॉन्स एट द अनदर लेवल ऑफ द फैक्टर्स। The analysis of a single factor experiments is often referred as a one-way ANOVA। इस तरीके का एनालिसिस जो है सिंगल एक्सपेरिमेंटल फैक्टर्स के साथ इसको वन वे एनोवा जो है वो बोला जाता है। सो वन वे और 1 फैक्टोरियल मेथड्स की अगर बात करें द यूज ऑफ द वन वे विच इज़ द एनोवा विच इज़ द एनालिसिस ऑफ द वेरिएंस, राइट, मीन वेरिएंस, टू डू द फॉलोइंग। When you have one categorical factors, जब आपके पास एक ही कैटेगोरियल फैक्टर्स होगा एंड ए कंटिन्यूस रिस्पॉन्स, तब आप क्या करेंगे? यू हैव टू डिटरमाइन वेदर द मीन ऑफ द 2 और मोर ग्रुप इज डिफर।
तब आपका जो है वो मीन जो है वो दो या दो से ज़्यादा ग्रुप के अंदर डिफर हो रहा है कि नहीं हो रहा है. ऑब्टेन अ रेंज ऑफ दैट वैल्यू फॉर अ डिफरेंस बिटवीन द मीन फॉर ईच पेयर ऑफ द ग्रुप्स. वेयर टू फाइंड दिस एनालिसिस इन द मिनी टैब. इस एनालिसिस को आपको मिनी टैब के अंदर फाइंड आउट करना है. यू हैव अ स्टेटिस्टिक एनोवा, वन वे एनोवा. ये कैटेगरीज के अंदर आपको मिनी टैब के अंदर जो है ये सारे जो है ये आपको फाइंड आउट करने हैं कि एनोवा किस तरीके से स्टेटिस्टिक्स और वन वे एनोवा के ऊपर काम करता है. तो वन फैक्टोरियल मेथड्स, लेट्स हैव सम एग्जांपल ऑफ द वन फैक्टोरियल मेथड्स. सो यहाँ पे आपके पास कुछ डेज है वीकेंड्स के, एंड द ट्रांजेक्शनल पर डे के वेंसडे कितने, वीकेंड्स के वीक डेज के ऊपर मंडे कितने ट्रांजेक्शन्स पर डे होते हैं. और उस हिसाब से जो है आपके पास बहुत सारे डेटाज यहाँ पे अवेलेबल है, और उस हिसाब से कौन से दिन जो है वो किस तरीके के ट्रांजेक्शन्स, कितने अमाउंट में ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसके डेटा आपके पास अवेलेबल. कंसिडर ए BPO वेयर ऑप्स अ मैनेजर इज वांट्स टू नो इफ द प्रोडक्टिविटी, suppose the productivity in the form of the transactions per day of his team is same every day. तो वो एवरी डे जो है उसकी प्रोडक्टिविटी उसके एम्प्लॉय की सेम होती है, ये मैनेजर जानना चाहता है. द एजम्पशन इज द प्रोडक्टिविटी इज सेम ऑन एवरी वीक डे. हम लोग ये एजम्पशंस लगाते हैं अभी बेसिक के लिए कि प्रोडक्टिविटी जो है वो वीक के एवरी डे के लिए जो है, एवरी वीक डे के लिए हमारी प्रोडक्टिविटी जो है वो सही होती है, एक तरीके से होती है. देयर इज ए HO null hypothesis. So the productivity on Monday is equal to Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Alternative hypothesis is the productivity on at least one weekend is not same. एक ये प्रोडक्टिविटी, एक ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि एक ये हाइपोथेसिस हो सकता है कि प्रोडक्टिविटी जो है वो वीक के एक दिन जो है वो सेम नहीं रहती है. तो मंडे इज इक्वल टू ट्यूसडे, इज इक्वल टू वेडनेसडे, थर्सडे इज इक्वल टू फ्राइडे, और एनी डे एवरेज प्रोडक्टिविटी इज नॉट इक्वल टू एटलीस्ट वन अदर डेज प्रोडक्टिविटी. हर दिन की जो है वो प्रोडक्टिविटी दूसरे दिन की प्रोडक्टिविटी से जो है वो एक तरीके से मैच नहीं करती. तो आपने वन फैक्टोरियल मेथड के एग्जाम्पल के अंदर जो है वो आपने फर्स्ट यू हैव टू मिनी टैब, गो टू द स्टार्ट, गो टू द एनोवा. या आपकी क्या करना है, मिनी टैब ओपन करना है, फिर उसके अंदर एनोवा के अंदर जो है स्टार्ट में जाके एनोवा में अंदर जाना है, गो टू द वन वे जो है एनोवा के लिए आपको जाना है, एंटर द फैक्टर्स, आपके पास क्या फैक्टर्स है, एंड एंटर द रिस्पॉन्सेज. आपको फैक्टर्स और रिस्पॉन्सेज जो है वो ऐड करना है. तो फैक्टर्स आपके पास, प्रोडक्टिविटीज़ है आपके पास. तो ये हिसाब से आपको किस तरीके से ये काम करता है ये आपको पता चलेगा. नेक्स्ट विच इज़ द नेक्स्ट मेथड विच इज़ ऑफ द डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट विच इज़ द फुल फैक्टोरियल मेथड. इन द फुल फैक्टोरियल मेथड द फुल फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट इज लुक कंप्लीटली एट ऑल द फैक्टर्स. यानी फुल फैक्टर्स जो है वो हर एक फैक्टर के अंदर, फुल फैक्टोरियल मेथड के अंदर जो है वो सारे फैक्टर्स को जो है जो अफेक्ट कर सकते हैं, आइदर इट इज़ ए क्वांटिटेटिव आइदर इट इज़ ए क्वालिटेटिव, ये सारे फैक्टर्स को जो है कंप्लीटली स्टडी में कंसिडर करता है, इंक्लूडेड इन द एक्सपेरिमेंटेशंस. इन फुल फैक्टोरियल ऑल द पॉसिबल कम्युनिकेशंस और कॉम्बिनेशंस दैट आर एसोसिएटेड विद द फैक्टर्स एंड देयर लेवल्स आर स्टडीड. सारे फैक्टर्स और उस कॉम्बिनेशंस को स्टडी के अंदर जो है वो लिया जाता है. द इफेक्ट्स दैट आर द मेन फैक्टर्स एंड देयर इंटरेक्शंस बिटवीन द फैक्टर्स आर मेजर्ड. और मेन फैक्टर्स और इनके जो इंटरेक्शंस होते हैं उसको स्टडी के अंदर जो है वो कंसिडर करके उसको मेजर किया जाता है. इफ़ वी आर यूज देन टू लेवल और ईच फैक्टर्स, दो लेवल और हर एक फैक्टर्स के लिए, वी कैन ऑल्सो स्टडी वेदर एन इफेक्ट ऑन द रिस्पॉन्स इज लीनियर और इफ there is a curvature in the experimental region each factor and for the interactions.
full factorial experiments can require many experimental runs if many factors at many level are investigated. तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल वर्क करना रहता है और इस हिसाब से जो है जितने ज़्यादा फैक्टर होंगे उतने ज़्यादा आपको लेवल के ऊपर आपको इन्वेस्टिगेशंस करना पड़ेगा. So there is a two factorial methods. This is the simplest two level factorial experiment is the design where a two factors, say the factor A or factor B, are investigated at the two levels. So a single replications of this design will require a 4 run. Consider the two factors which is A and B. So there will be a 4 combination which is 2, 3 is 2. Says 2 is level at the hypothesis H plus 1 and low at the minus 1. So the possible combinations are illustrated in the below. So the run 1, 2, 3, 4 are there is a two factor A and B. There is a response plus positive response, one positive, one negative, one positive, and fourth one which is the both are negatives. So which is recorded in this manners, right? So the main effect of A का effect क्या रहेगा? The mean response at plus level minus mean response at minus level. तो आपका प्लस क्या हो जाएगा कि 30 plus 50 डिवाइड बाई 2 माइनस 10 plus 20 डिवाइड बाई 2, 40 minus 15 it is 25. Now the effect of the B, which is the mean response at plus level minus mean response at the minus level. So 30 plus 10 minus 30 plus 10 divided by 2 or 50 minus 20, 50 plus 20 divided by 2, which is the 25 minus 35 is equal to minus 15. There is a negative replications. तो ये चीज़ आपको यहाँ से एक निकल के आती है, द इट्रैक्शंस इफेक्ट ऑफ ए एंड बी. सो द मीन रिस्पॉन्स एट द प्लस लेवल माइनस मीन रिस्पॉन्स एट द नेगेटिव लेवल. सो वी कैन से दैट द 30 plus 20 divided by 2 minus 50 plus 10 divided by 2, which is 25 minus 30, which is the minus 5. The iteration is obtained by the multiplications of the factors which is involved. The two factorial method has some example. So first we have to go to the standards toolbar and move to the cursor to the design of experiment. Select the plan and create. You have to select the plan and you have to create. From the below the pop-up you have to select create a modeling design. आपको एक modeling design plan करना है. As we are dealing with the two factors or now हम लोग दो फैक्टर के साथ स्टडी कर रहे हैं. तो फर्स्ट वी हैव टू एंटर द नेम ऑफ द रिस्पॉन्सिबल वेरिएबल और लीव एज द रिस्पॉन्स. Select the goal, select the factor as a 2, enter the factorial name and setting, enter the name of the replicates. Here it is 4 replicates. Number of run is on auto populate based on the factors are the replications. तो इस हिसाब से पूरा जो है वो 1 फैक्टोरियल और फुल फैक्टोरियल डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट जो है वो आप ये अगर हम लोग मैं आपको ये चीज़ थोड़ा और ज़्यादा क्लियर करने की कोशिश करूँ कि अगर हम लोग कॉलेज में होते तो फिर हम लोग एनोवा मिनीटेप सॉफ्टवेयर के अंदर यूज़ करके मैं आपको ज़्यादा बेटर तरीके से आपको इसको बता सकता था. आप इसको जो है वो लेक्चर को एटलीस्ट 2 बार देखने की कोशिश की तो थोड़ी चीज़ आपको समझ में आएगी. और मिनीटेप के जो है वो ट्यूटोरियल भी यूट्यूब के अंदर अवेलेबल है, तो आप थोड़ा और देखोगे एनोवा के लिए मिनीटेप कैसे यूज़ कर सकते हैं वो ज़्यादा आपको क्लियर होगा. फिर भी ये लेक्चर के अंदर आपको कोई कन्फ्यूजन्स है, कोई डाउट्स है, कोई डिफ़िकल्टीज़ है तो आप मुझे क्वेश्चंस के अंदर पूछ सकते हैं. आपको ये लेक्चर देखने के बाद आपका जो एनरोलमेंट नंबर है वो आपको कमेंट सेक्शंस के अंदर लिखना है, विच इज़ काउंटेड एज योर ऑनलाइन अटेंडेंस. सो दिस इज़ about the today's lecture. Thank you so much for watching this video lectures.